Shri D.P. Tripathi. थैंक यू मिस्टर डिप्टी चेयरमैन। मैं शुरुआत तो करना चाहता था कश्मीर के मसलों के मुतल्लिक आज की बहस में। आई विल। कश्मीर के बहुत अजीम शायर पीरज़ादा गुलाम अहमद महजूर साहब से, लेकिन कश्मीर में जो हालात हैं, आज उपसभापति जी मैं मजबूर हो गया हूं कि बंगाली के मशहूर कवि स्वर्गीय नवारुण भट्टाचार्य, जो मेरे बड़े जिगरी दोस्त थे, उनकी कुछ पंक्तियों से मैं कश्मीर की समस्या की बहस की शुरुआत करूं। पहले ओरिजिनल में सुना देता हूं, तर्जुमा में सुनो। এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না, এই জল্লাদের উল্লাস মঞ্চ আমার देश না, এই বিস্তীর্ণ শ্মশান আমার देश না, এই रक्तस्नात काशाई खाना हमार देश ना। ये मौत की घाटी मेरा मुल्क नहीं है, ये जल्लादों का उल्लास मंच मेरा मुल्क नहीं है, ये फैली हुई कब्रगाह मेरा मुल्क नहीं है, ये खून में नहाया हुआ कसाई खाना मेरा मुल्क नहीं है। हालात आज कश्मीर के यहां पहुंच चुके हैं और आज जो सरहद के पार से दहशतगर्द आ रहे हैं, घुसपैठ कर रहे हैं, हालात को बिगाड़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बट इट इज नॉट merely infiltration, it is what, beginning with honorable leader of the opposition, who happens to be a great son of Kashmir. We are all proud of him that he is leading the opposition in this house, Mr. Ghulam Nabi Azad, to Sharad Yadav, to Derek O'Brien, and to Sitaram Yechury have pointed out that the House is one as far as opposing all these anti-national terrorist activities promoted by Pakistan across the border are concerned. As leader of the House said, we should speak in one voice. We are all prepared to speak in one voice. But I fail to understand why the government is not convening the all-party meet and then sending a delegation. What is so wrong and so dangerous about this, I fail to understand. This is something which should be treated as urgent beginning of the dialogue, which is essential. I am sorry to say that the government is behaving as the Tamil saying says. I asked Dr. Matrian to correct me if I remember correctly. Kashtapatta fela agade. Don't work hard to fail, work hard to succeed. And we all are with you, with the Treasury benches, in resolving this crisis. Some honorable members have said that this is the worst, longest curfew in post-independent India. It is wrong. I want to correct that impression. It is not the only example. In that also, no, Derek O'Brien, in that also Gujarat tops. In 1969, in the communal clashes in Ahmedabad, example of the longest curfew for 65 days, in which 560 people lost their lives. No, I'm not blaming anybody. What I'm saying is just a factual example. No, just factual example. So, see, Muradabad, but not that long. I have the record. Now, what are the solution? Solution number one, there are people who have gone into the history from Sharad Yadav ji to Professor Ram Gopal Yadav and now Sitaram Yechury. I'm not repeating those things. But one thing I must state, which is the most important thing, because it is a resolution passed by the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir unanimously. And I'm quoting from that resolution of 17th November 1956. The resolution says, and I quote, Jammu and Kashmir is and shall be an integral part of the Union of India, unquote. This government of India did not say. This resolution is passed by the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir unanimously. So the matter is settled.
But how that integration is possible, that is what is more important. That is possible on the basis of building the trust among the people of Kashmir, which has always been said, and it has to be done. How it will be done, I'm telling you. There are certain examples of integration. And since it has not been pointed out by any of the honorable members, I must state that. एक कश्मीरी की हिंदुस्तान के तमाम मुख्तलिफ हिस्सों में जितनी इज्जत होगी, उतनी ही ज़्यादा हमारी इज्जत कश्मीर की घाटी में बढ़ेगी। ये सबसे ज़रूरी बात है जिसका ख्याल रखना चाहिए। एक शॉल बेचने वाला जब हमारे कस्बे में पहुंचता था उस ज़माने में, तो जिस तरह उसकी इज्जत होती थी, जिस तरह एक मोहब्बत का माहौल था, वो अब बिगड़ रहा है देश के हिस्सों में। आज जो सलूक कश्मीर के स्टूडेंट्स के साथ हिंदुस्तान के तमाम हिस्सों में हो रहा है, ये होम मिनिस्ट्री को जांच करनी चाहिए कि तमाम प्राइवेट कॉलेजेस में ब्यौरे बनाए जा रहे हैं कश्मीर से आने वाले स्टूडेंट्स के। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में ही है, जो अनफॉर्चुनेटली भारत की अकेली यूनिवर्सिटी है जिसमें हिंदुस्तान के हर सूबे से लोग आते हैं। सभी में आना चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कई गुना बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी तमाम सूबों से लोग आते हैं, लेकिन वहाँ कंपलसरी नहीं कि हर सूबे का आदमी होना ज़रूरी है। ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में है। वहाँ आज कश्मीरी स्टूडेंट्स को शक की नज़र से देखा जा रहा है। कैसे चलेगा मामला आपका? कश्मीरी पे यकीन, और वहीं से शुरू होगा ये मसला जिसका जिक्र अभी डॉक्टर कर्ण सिंह भी करेंगे और सुनूंगा मैं उनसे। कश्मीर पर 1984 से लगातार बात कर रहा हूं। कश्मीरियत अपने आप में, ये कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत जिन्होंने कश्मीर की समस्या का बहुत अध्ययन किया था, उन्होंने कई जगह लिखा कश्मीरियत क्या है। कश्मीरियत तमाम कल्चर्स का, सिंथेसिस ऑफ वेरियस कल्चर्स एंड फेथ्स। कश्मीर के बगैर ये पूरी सूफी विरासत आपके पास नहीं होती, ये तहजीब नहीं होती। कश्मीर के बगैर बाण भट्ट की कादंबरी नहीं होती। मैं महाराष्ट्र से एमपी हूं, जो मराठी भाषा में नॉवेल को कादंबरी कहा जाता है, तो वहां से आता। इसलिए मेरी अपील है सरकार से कि पहले तो डायलॉग शुरू करिए, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, लोगों को भेजिए। दूसरी बात जो कहना चाहूंगी, जिसका जिक्र अभी तमाम वक्ताओं ने नहीं किया है, लीडर ऑफ द अपोजिशन ने किया था, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी की अगुवाई में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए अक्रॉस द सेगमेंट्स ऑफ सेक्शंस ऑफ कश्मीरी सोसाइटी जो वर्किंग ग्रुप्स बने थे, जिसका जिक्र अभी सीताराम येचुरी कर रहे थे, उसका जिक्र लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी किया और लोगों ने भी किया, जिसकी सदारत हमारे चेयरमैन हामिद अंसारी साहब ने की थी। और कितना इफिशिएंट वर्किंग ग्रुप था। आप देखिए कि वो मई 2006 में वो फॉर्म किया जाता है और 10 जनवरी 2007 को अपनी रिपोर्ट सौंप देता है। और उसमें जो रिकमेंडेशन है, सबसे जरूरी रिकमेंडेशन ये है कि डायलॉग बंद नहीं होना चाहिए, बातचीत का रास्ता कभी बंद नहीं होना चाहिए। जब तक हम ये नहीं चलाएंगे तब तक लोगों का विश्वास कैसे जीतेंगे? तो इसलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह के यूपीए 1, यूपीए 2 में जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए कदम उठाए गए थे, उसको इस सरकार को लागू करना चाहिए। तीसरी और जरूरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को और पूरे हाउस को मौजूदा चुनी हुई सरकार जो मोहतरमा महबूबा मुफ्ती की अगुवाई में चल रही है, उसको पूरी तरह सपोर्ट करना चाहिए, मदद करनी चाहिए इस क्राइसिस से निपटने की। ये बहुत ही जरूरी बात है। और आखिर में चूंकि घंटी बज चुकी है और हम लोगों को वक्त तो मिलता नहीं, चाहे मसला कितना भी अहम हो, तो मैं सिर्फ 2 बातें कर देता हूं बहुत मुख्तसर में। कश्मीरी के द ग्रेट पीपल्स पोएट, फिलोसोफर एंड ह्यूमनिस्ट पीरजादा गुलाम अहमद महजूर, उन्होंने लिखा है, अंग्रेजी का तर्जुमा मुझे याद आ रहा है, उनकी मशहूर नज्म है आज़ादी। आज़ादी में उन्होंने क्या लिखा है? स्ट्रेंथ लाइज नॉट इन सीवियर रिप्राइजल्स नॉर इन क्रूएल रिवेंज, यू कैन विन ओवर बिटरेस्ट फोर्स विद द फोर्स ऑफ लव एलोन, अनकोट। दूसरा जो बहुत मौजू है आज के हालात में, उनकी ही नज़म से है, ये 2 मिसरे जो बहुत जरूरी हैं, जिसका भी अंग्रेजी तर्जुमा मैं कर देता हूं। नाइव इंडीड आर योर फेथ टू सी एज सेवियर्स एंड रिडीमर्स इंटरलोपिंग बर्ड्स, ये बाहर से आने वाले जो इंटरलोपिंग बर्ड्स दैट बर्न
with envy of your lot, unquote. और आखिर में कश्मीरी के मशहूर शायर, जो आज हम सब लोगों को कश्मीर के लिए करने की ज़रूरत है, वो एक मिसरे में कह गए। जनाब रसूल मीर साहब कश्मीरी के बड़े शायर थे, उन्होंने कहा कि आई हैव टू टेंड द फायर ऑफ लव ईच डे। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. Thank you.